So what we have seen in our previous class was how to create database in MySQL और MySQL कैसे shell में start करते हैं. So we have such command like MySQL -u root p add your password show databases, then use databases and create table and describe that table, select that table to view our fields, and then we have insert values in our fields, and then we see our table and how these command will execute in MySQL shell. We have seen that in our this session we will see how the select statement is used, not null statement is used, and यूनिक कंस्ट्रेंट कैसे हम यूज करते हैं, प्राइमरी की कैसे यूज करते हैं. तो नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, व्हाट आर दीज, चेक कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं, और ये सारी चीजें हम आज इस सेशन में देखेंगे. तो सबसे पहले हमें माइस्क्यूएल सेशन में अपने जाना पड़ेगा. तो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट open our command prompt, and in that command prompt what we have to do, we have to move to our cd bin directory of our MySQL server. So firstly my c program, then we have to move in program files, MySQL, then MySQL server, then bin, and in that bin folder we have our MySQL file, that compiler, and control C, and we have to move to our directory, from that to bin directory of MySQL. Now what we have to use, MySQL minus u, that is root is our username, minus p, enter password, that is our root, and then in MySQL we have to show our databases. Show databases, we have Himanshu DB. Let us explore SV Infotech to use SV Infotech, SV Infotech staff. या हम एक दूसरा डेटाबेस यहां पर ले लेते हैं, MySQL database and Himanshu. Okay, database change. Now DESC describe show tables. Show tables. We have two tables, employee and employee Himanshu. Let us see employee Himanshu table. Then we have to use DESC employee Himanshu. Now we have EMPID, first name, last name, username, password, address and contact, and let's select. Up now, first command that we have to see is select statement. So how will we use select statement in तो हमने अभी तक जो देखा है वो ये देखा है, select asterisk from table name, that is our employee ID, employee Himanshu. So employee Himanshu, select asterisk from employee Himanshu. We have Himanshu Utkarsh, Himanshu Adarsh. We have these kind of entries here. Now अब यहाँ पर सपोज हमें यहाँ पर अपनी टेबल नेम से सिर्फ एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो हम यहाँ पर जो कमांड यूज करेंगे वो सेलेक्ट EMP ID from employee Himanshu. Now we will see EMP ID. Now let us, अगर हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम चाहिए तो हमारी जो फील्ड है फर्स्ट नेम FIRSTNAM, select first name from employee Himanshu. नाउ अगर हमें यूजर नेम सिर्फ चाहिए, हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं हमें उनका सिर्फ यूजर नेम चाहिए, हमारी कंपनी के लिए हम यूज करना चाह रहे हैं कहीं पर, तो हम यहाँ पर अपनी फील्ड का नाम सिर्फ एंटर करेंगे, सेलेक्ट यूजर नेम. सो सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय हिमांशु,
that will give you all the username from your table. Okay, अब मान लो हमें यूजर नेम अलॉन्ग विद द पासवर्ड चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट यूजर नेम कॉमा द फील्ड पासवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो हमें यूजर नेम और पासवर्ड अलॉन्ग विद मिल जाएंगे। सो अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करना सीख लिया है। नाउ अगेन वी हैव नॉट नल स्टेटमेंट। ये क्या है? सपोज अब जो हमारी टेबल है यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल एंड DSC कमांड के थ्रू हमने ये टेबल देखी, तो यहाँ पर जो EMP ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर नेम पासवर्ड एड्रेस कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर जो एक फील्ड है हमारी जो एट्रीब्यूट है वो क्या है? नल। तो नल क्या है यहाँ पर? EMP ID कैन बी नल, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यस। तो सपोज हमारी जो कंपनी है, किसी भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय आईडी कभी भी नल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा मान लो एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर, क्रिएट टेबल नेम दैट इज EMP, ठीक है। और उस EMP के अंदर हमारे पास है EMP ID, जैसे एम्प्लॉय टेबल है EMP, एंड उस टेबल के अंदर हमारे पास है EMP ID। तो EMP ID का टाइप क्या है? इंटीजर टाइप, एंड दैट कैन नॉट बी नल। सो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट यहाँ पर लगाते हैं नॉट नल, और फिर यहाँ पर कॉमा, ठीक है। और क्या होना चाहिए? फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम हमारा यहाँ पर F नेम हो गया। ये कैसा है? वेर कैर। तो हमने यहाँ पर दे दिया इसकी वैल्यू 255 रेंज, और फिर यहाँ पर कॉमा लगाया। देन L नेम, तो L नेम यहाँ पर हमने दिया, और वो भी है हमारा वेर कैर। वेर कैर की रेंज जो है वो भी हमारी 255 है। नाउ अब हमें यहाँ पर इसको इतनी एंट्रीज के साथ में बंद करना है, ठीक है। क्वेरी ओके। नाउ वी हैव क्रिएटेड अवर टेबल। अगर हम शो टेबल्स में जाएं, सॉरी, तो शो टेबल्स में हमारे पास हैं EMP एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय हिमांशु। तो अभी हमने एक टेबल क्रिएट करी है EMP, तो DESC EMP दैट विल बी अवर एजेंडा। तो EMP ID F नेम एंड लास्ट नेम ये है यहाँ पर, और EMP ID कैन नॉट बी नल। अब यहाँ पर हम वैल्यूज इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हमने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू EMP, एंड इन दैट EMP टेबल वी हैव EMP ID कॉमा, एंड EMP ID F नेम कॉमा L नेम। ओके, तो 3 एंट्रीज हैं यहाँ पर, और इसके बाद फिर वैल्यूज, एंड इन दैट वैल्यूज वी हैव टू एंटर वैल्यूज लाइक। अब यहाँ पर हम क्या नल वैल्यू दे सकते हैं? तो सपोज हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो NULL नल वैल्यू, और जो नाम है हमारा वो डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है वो पहला नाम हमने दे दिया हिमांशु, एंड कॉमा एंड SINGH। सिंगल कोट के अंदर हमें ये एंट्रीज फिल करनी होगी जो भी हमारी वेर कैर वैल्यूज होंगी। सो वी हैव वैल्यूज, एंड देन यहाँ पर एक एरर दे दिया है, कॉलम EMP ID कैन नॉट बी नल। वाई? बिकॉज वी हैव सेट कंस्ट्रेंट दैट इज EMP ID कैन नॉट बी नल। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट क्रिएट टेबल बनाते वक्त हमने यूज किया था कि EMP ID इंट नॉट नल, वैल्यू कभी भी इसकी नल नहीं हो सकती है। तो एरर 1048 यहाँ पर आपको मिलेगी, जो कि है कॉलम दैट कैन नॉट बी नल। The next we have unique constraint. All values in column are different. तो single primary key is allowed for one table, ये हमें पता है। तो हम यहाँ पर हमने एक क्रिएट करी टेबल, और
suppose we have created a table, create table name that is emp1. okay, suppose we have created a table named emp1 और यहाँ पर जो हम emp id दे रहे हैं emp id int not null. ओके, ये नॉट नल है, देन कॉमा emp id नॉट नल, देन f name varchar 255 कॉमा, ठीक है, एंड इतना हम अभी दो दे रहे हैं emp id एंड f name. अब यहाँ पर यूनिक कंस्ट्रेंट का यूज कैसे करते हैं, यूनिक, और यूनिक हमारा क्या है emp id कैन नॉट बी सेम, एम्प्लॉय आईडी कैन नेवर बी सेम फॉर अ कंपनी, तो यहाँ पर वही हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि यूनिक होगा हमारा emp id. अब यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर दिया क्लोज, क्वेरी ओके. नाउ अगर हम यहाँ पर इंसर्ट कराएं, इंसर्ट इनटू emp1, हमारी टेबल का नाम है emp1 और emp id इज सपोज 1 हिमांशु सिंह. ओके, कॉलम नेम एल नेम इन द अननोन कॉलम. अच्छा, तो इंसर्ट इनटू, अच्छा यहाँ पर दो ही फील्ड्स हैं, तो हमने यहाँ पर जो वैल्यूज देनी है दो ही वैल्यूज देनी है सपोज, ठीक है. नाउ क्वेरी ओके. अब यहाँ पर मान लो emp id हम 1 दे रहे हैं और यहाँ पर नाम हमने मान लो चेंज करने की कोशिश करी, यहाँ पर हमने लिखा सपोज, ठीक है. तो क्या ये हो सकता है सेम emp id कैन बी जनरेटेड, तो एरर यहाँ पर आ जाएगा डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर द की emp1 डॉट emp id. emp1 हमारा एक टेबल है जिसके अंदर की emp id एक हमारी फील्ड है, यहाँ पर हमने डुप्लीकेसी करने की कोशिश करी जो कि हमने एक कंस्ट्रेंट लगा रखा था यूनिक एंड दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड टू मेक इट सेट एज प्राइमरी की. तो emp id यहाँ पर जैसे ही आपका यूनिक कंस्ट्रेंट लगाते हो तो यूनिक कंस्ट्रेंट का मतलब ही हो गया कि ये प्राइमरी की है, ठीक है. तो इसी तरह हम यहाँ पर प्राइमरी की भी बना सकते हैं, तो क्रिएट टेबल emp2 सपोज, और यहाँ पर emp2 में हमने टेबल बनाई है. अब इसके अंदर हम emp id दे रहे हैं, मान लो emp id employee id that is integer type and that cannot be null. ओके, इतना हो गया. मान लो एक ही फील्ड है हमारे पास और f नेम और दे देते हैं, तो emp id कॉमा एंड f नेम that is your varchar and that is 255 ranged. okay, now enter query okay. select. अब यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं emp2 में, जो हमारा emp2 टेबल है यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करते हैं emp2 एंड दैट emp id एंड f नेम. ओके, ये भी है यहाँ पर. अब इंसर्ट इनटू emp id और हमें यहाँ पर सेट करना था प्राइमरी की, तो वो भी हम लेट अस सपोज एक तीसरी एंट्री बनाते हैं emp3 f नेम वैल्यूज 1 कॉमा वांशु emp3, तो हमने बनाई नहीं है, तो सपोज प्राइमरी की अब हमें यहाँ पर एक टेबल में बनानी है, तो क्रिएट टेबल नेम हम दे देते हैं मान लो emp3 and in that table we have created emp id int not null comma. now we have f name that is varchar and in varchar we have taken it as 255 and again comma. अब हमें क्या करना है, emp id को प्राइमरी की बनाना है, तो हमने यहाँ पर लिखा प्राइमरी की
primary key, and primary key will be emp id. So emp id. Okay, now again close this query. Okay, now we have to see our table. Select asterisk from emp id 3, emp3 एम्प्टी सेट। अभी इसमें वैल्यूज नहीं है। सपोज हम यहाँ पर इंसर्ट इनटू emp2, तो emp3 empid fname वैल्यूज 1 हिमांशु। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। अब DESC और emp3, तो वी हैव नॉट नल की प्राइमरी की यहाँ पर empid के लिए हमने सेट करा हुआ है। ठीक है, तो प्राइमरी की इज व्हाट, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। हर रो में यूनिक आईडी रहेगी हमारी, empid हमारी हमेशा यूनिक रहेगी। तो अगेन वी हैव द लास्ट वन, that will be